نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور 3 بار فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص بڑھاپے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر اپنا دربار ہواؤں میں لگاتے تھے۔ آپ کے دربار میں پرندے، جنات اور اندیکھی مخلوقات بھی حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کئی دنوں تک آپ کا دربار ہوا میں معلق رہا اور ہواؤں کے بہاؤ کے ساتھ دور دراز کے ایک سمندر پر جا پہنچے۔ قدرت کے عالی شان نظارے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی اور عظمت بیان فرما رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، اگر میری قدرت کا ایک حیران کن نظارہ دیکھنا چاہتے ہو تو سمندر کے اندر دیکھ سکتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً سب سے طاقتور جن کو حکم دیا کہ فوراً سمندر کے اندر جائے اور اندر کا پورا منظر مجھے واپس آ کر بیان کرے۔ جن نے واپس آ کر بتایا کہ میں نے سمندر کے اندر ایک کونا چھان مارا ہے، لیکن سوائے آبی مخلوقات کے میں نے کوئی غیر معمولی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کے درویش اپنے خاص مصاحب آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے علم کی طاقت سے سمندر کے اندر کے حالات سے مجھے آگاہ کریں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے سمندر میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ ایک مسجد جو دنیا کے قیمتی ترین ہیروں اور جواہرات سے مزین ہے، اس مسجد کے اندر ایک شخص کھڑا نماز ادا کر رہا ہے۔ پھر حضرت آصف بن برخیہ نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں وہ مسجد اس شخص سمیت سمندر سے باہر لا کر آپ کے سامنے کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت پانے کے بعد آصف بن برخیہ نے وہ مسجد اس کے اندر موجود شخص کے ہمراہ لا کر سمندر سے باہر فضا میں معلق کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد کا منظر دیکھا تو بے ساختہ اللہ کی عظمت اور رفعت بیان فرمانے لگے اور حیرت کا اظہار فرمایا کہ زیر سمندر ہونے کے باوجود بھی اس مسجد کے کسی در و دیوار پر پانی کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے عبادت گزار بندے کو دیکھا تو وہ بھی پانی کی تری سے بالکل پاک تھا۔ اس شخص نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ کو سلام کیا اور عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ نے آپ کی شان نہایت بلند و برتر فرمائی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہاں اس مسجد میں عبادت کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون کے زمانے سے یہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہارے کس عمل نے تمہیں اس مقام پر پہنچایا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں نے 100 سال تک اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت پورے دل و جان سے کی تھی۔ میرا باپ بوڑھا اور چلنے پھرنے سے قاصر تھا، جبکہ میری ماں بھی بیمار تھی کہ میں نے دونوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ دن رات میں ان کی خدمت میں مصروف رہتا تھا۔ پھر جب میرے والد کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے دعا دی کہ میری عمر دراز ہو، اور جب میری ماں کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے مجھے یہ دعا دی کہ اللہ مجھے ہر طرح کے شیاطین سے محفوظ فرمائے، تو دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ میں اسی وقت سے اس مسجد میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ اللہ نے مجھے لمبی عمر عطا فرمائی ہے اور میری عبادت گاہ کو سمندر کی تہ میں چھپا دیا ہے کہ یہاں تک کسی قسم کے شیاطین اور جنات کا پہنچنا ناممکن ہے۔ میرا رب مجھے رزق دیتا ہے جو میں کھاتا ہوں اور پھر اس کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور یہ سب میرے بوڑھے والدین کی خدمت کے بدلے ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت چاہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے علم سے اسے پھر سے زیر سمندر اسی جگہ تک پہنچا دیا۔ بے شک بوڑھے ماں باپ کی خدمت انسان کو دنیا و آخرت میں وہ مقام دلوا دیتی ہے جو مقام انسان کو اپنی عبادت اور اپنی پوری عمر کی ریاضت سے بھی نہیں مل سکتا۔ بوڑھے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلبیب تھا، اور اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حباب تھا۔ یہ لڑکا حباب حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا، نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھا کہ جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جایا کرتا تھا۔ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ یہ
लड़का अपने इखलाक में भी अपना सानी नहीं रखता था। निहायत खुश तबा, खुश मिजाज और खुश इखलाक था। एक बार ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से उसने अपने वालिद के खजाने में एक संदूक देखा जो सुर्ख मोतियों से भरा हुआ था और उस पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी, और ऐसा इसलिए था कि कोई शख्स इसे ना तो खोल सके और ना ही उसके अंदर देख सके कि क्या है। लड़के ने इस संदूक को देखा तो बड़ा गजबनाक होकर बाहर निकला। बाप से वजह पूछी तो कहने लगा कि एक अरसा हो चुका है और आपने एक चीज भी मुझसे पोशीदा नहीं रखी, लेकिन मैंने देखा है कि आपने ये संदूक हमेशा बंद रखा है, हालांकि मेरे लिए आपकी शफकत और मोहब्बत बहुत ज्यादा है। बाप ने जब बेटे के ये अल्फाज सुने तो कहने लगा कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, इस संदूक में ना तो कोई हीरे और जवाहिरात हैं और ना ही कोई खजाना छुपा रखा है। इसमें तो बस चंद औराक हैं जिन पर अरबी जुबान में एक नाम लिखा हुआ है। जब तुम उलमा की मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और इस तहरीर को पढ़ने के काबिल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो इन औराक का मुताला भी कर लेना। अभी तुम ऐसा ना करना क्योंकि अभी तुम नापुख्ता ज़हन हो, और यही वजह है कि इस संदूक का राज मैंने जानते बूझते हुए तुमसे पोशीदा रखा है। हबाब अपने वालिद की ये बातें सुनकर खास मुतमईन ना हुआ, और एक रोज जब जलबीब किसी जरूरी काम में मसरूफ था तो बेटे हबाब ने मौका गनीमत जानते हुए सोचा कि आज इस संदूक वाले राज से पर्दा हटा ही देता हूँ, और इसे खोलने में मशगूल हो गया। यही वो संदूक था कि जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। हबाब ने उसकी मुश्क से लगी हुई मोहर को तोड़ डाला और दिल ही दिल में तसव्वुर कर रहा था कि अब जब मैं संदूक को खोलूंगा तो अंदर से चमकते दमकते हीरे जवाहिरात मेरी आंखों के सामने होंगे। लेकिन उसने इंतहाई तजस्सुस के आलम में जैसे ही संदूक का ढक्कन ऊपर उठाया तो नूर की एक शुआ उस संदूक से बाहर नमूदार हुई, और वो नूर ऐसा रोशन था कि उसके सामने कमरे में चलते हुए चिराग की रोशनी मांद पड़ गई। उस संदूक के अंदर हबाब को 2 सफेद औराक दिखाई दिए और उन औराक पर कलिमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। कलिमा तैयबा के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा भी उन औराक में दर्ज थे। उस पर लिखा था कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरू पैवस्ता यानी भुएं एक दूसरे से मिली हुई होंगी, दाढ़ी मुबारक घनी होगी। जिस शख्स को भी उनका जमाना मुयस्सर आ जाए तो लाजिम है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें गौर से सुने। आपका कलाम कुरान होगा और आपका दीन इस्लाम होगा, और वो तमाम इंसानों को एक खुदाए वहदहु ला शरीक पर ईमान लाने की दावत देगा और अपने मुखालिफीन से नहीं डरेगा। जैसे ही हबाब की निगाहें उन औराक पर लिखी हुई तहरीर पर पड़ी तो उसके दिल में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने घर कर लिया। उसने उन औराक को अपनी आंखों और माथे पर मला, चूमा और कहने लगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं जान सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमान पर हैं या जमीन पर, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। फिर उसने अपनी महरूमी और सौगवारी का इस अंदाज से इजहार किया कि बेहोश हो गया, और चंद लम्हों के बाद उसकी वालिदा भी उस कमरे में आन पहुंची। बेटे को बेहोशी के आलम में देखा तो हैरान रह गई। फौरन उसके बाप को बुलाया। बाप ने जब अपने प्यारे बेटे को इस हालत में देखा तो उसके चेहरे से अपना चेहरा मलने लगा, माथे को चूमने लगा और रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर हसरत और गम का इजहार करने लगा। जब वो खूबरू नौजवान लड़का होश में आया, अपने वालिदैन को अपने सरहाने परेशान और गमजदा पाया तो एकदम गुस्से के अंदाज में अपने वालिद से कहने लगा कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद भी उस रहमत आलम से मुस्तफीद नहीं हुए कि आप तो मुझे बचपन ही से कुफ्र और शिरक की तालीम देते रहे हैं, और आपने मुझे तालीम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा महरूम रखा है। जब बाप ने अपने खुद साख्ता खुदाओं की बेहुरमती वाले अल्फाज बेटे की जुबान से सुने तो गुस्से से पागल हो गया। बेटे को बालों से पकड़ा और जमीन पर दे मारा और जोर जोर से अपने बेटे को पीटने लगा। जब जवान बेटे पर बाप का जुल्म हद से तजावुज हो गया तो वहाँ इत्तेफाक से एक अल्लाह वाला आन पहुंचा जिसका नाम हई इब्ने अख्तब था। उसने जब देखा कि बाप अपने जवान बेटे पर जुल्म करने में पागल हुआ जा रहा है तो उन्होंने बाप को मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत बेटे को सजा देने से ना रुकता था। कुछ देर में वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो गए और जब लोगों ने बाप से बेटे का कसूर पूछा तो वो कहने लगा कि कसूर
हुजूर तो इसका कत्ल किए जाने के लायक है और जब तक मैं इसको कत्ल ना कर दूं मैं इसको यूं ही मारता ही रहूंगा। उसने बताया कि ये अपने बाप दादा के दीन को छोड़ चुका है, अपने पुरखों के मजहब की बेहुरमती कर चुका है और दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर चुका है। मुशरिक लोगों ने बाप को समझाने की बजाय उसके बेटे को समझाना शुरू किया कि ए बेटे, दूर दराज से लोग हमसे इल्म हासिल करने आते हैं, लोग हमारी इत्तिबा करते हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ कि तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में पड़ गए हो। उसका दीन छोड़ दो और अपने बाप दादा के दीन पर ही कायम रहो। ये तमाम बातें सुनने के बाद जवान बेटा हबाब कहने लगा कि मैंने बहुत गौर व फिक्र की है और मैं पूरी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिराते मुस्तकीम को ही अपनाऊंगा कि मैं उन पर ईमान ला चुका हूँ। लोगों ने उसे बहुत नसीहतें की और उल्टी सीधी बातें भी समझाई, लेकिन वो नौजवान अपने नेक इरादे पर डटा रहा। उन यहूदी मशाइख ने कहा कि क्योंकि ये लड़का नाजो नियम में पला बढ़ा है और ये जिंदगी के हकीकी मसाइब व तकालीफ के एहसास से नाबलद है। नाज़रीन किराम, सुनन अबी दाऊद में ये वाकया इन अल्फाज में तहरीर है कि बाप ने अपने बेटे से कहा कि जाओ और सौदा लेकर आओ। वो गया और जब वो लड़का रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नजर नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। उस हसीनो जमील लड़के ने जब हुस्ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजारा किया तो दिल थाम कर वहीं उसी जगह बैठ गया और बैठे बैठे वहाँ उसे काफी देर हो गई। उधर उस लड़के का बाप उसके इंतजार में कभी घर के अंदर जाता और कभी बाहर। लड़के के इंतजार में सूरज गरूब हो गया और मगरिब की नमाज भी हो गई। जब रात में वो लड़का वापस घर लौटा तो बाप ने पूछा कि अरे नादान, तूने वापस आने में इतनी देर कर दी है। बाप उस पर गजबनाक हुआ कि तू कितना नादान और पागल है कि मैंने कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन तुमने आने में इतनी देर कर दी। मैंने तुम्हें सौदा लेने भेजा था कि तुम खाली हाथ ही वापस लौट आए हो। फिर जब उस गजबनाक बाप ने गुस्से से बुलंद आवाज में पूछा कि सौदा कहाँ है तो बेटे ने कहा कि सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। लड़के के बाप ने कहा कि क्या पागल आदमी है, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहते हो कि मैं सौदा खरीद चुका हूँ। बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मेरा यकीन करें कि मैं सौदा खरीद कर आया हूँ। बाप बोला कि फिर दिखाओ वो कहाँ है। बेटे ने कहा कि काश तेरे पास वो आंखें होती तो तुझे जरूर दिखाता कि वो सौदा क्या है। ऐ मेरे बाप, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप डांटते डपटते दूर हो गया और फिर उसके बाद वो नौजवान हर रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता लड़का था और वो यहूदी अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने अपने लड़के से कुछ न कहा। कुछ दिन के बाद उस यहूदी का लड़का बेहद बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा और फिर उसे इतनी कमजोरी हो गई कि उस लड़के का करवट बदलना भी मुश्किल हो गया। वो करीबुल मर्ग था कि यहूदी बाप बेहद परेशान था। फिर भागा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और बोला कि मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ और आप तो जानते ही हैं कि मैं एक यहूदी हूँ और आपकी तालीमात से इत्तिफाक नहीं करता, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे बैठा है। वो करीबुल मर्ग है और आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या ये मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर में तशरीफ लाकर अपने आशिक को एक बार देख ले? क्या ये मेरी आरजू पूरी हो जाएगी कि मेरा वो लड़का मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले, क्योंकि वो किसी और चीज की आरजू नहीं कर रहा सिवाय इसके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फौरन फरमाया कि चलो चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और बाकी सहाबा को भी साथ लिया और फौरन उसके घर की जानिब चलने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस यहूदी के घर पहुंचे तो उसकी आंखें बंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के की पेशानी पर अपना दस्ते अक़दस रखा तो लड़के की आंखें खुल गई, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई हो, जैसे नातवानी में जवानी आ चुकी हो। उसकी आंखें खुली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नजर पड़ी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, उसके लब खिल गए और उसकी मुस्कुराहट फैल गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बस अब तुम कलिमा पढ़ लो। वो लड़का अपने बाप का
मुंह देखने लगा तो यहूदी बोला कि मेरा मुंह क्या देखता है। अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आपने इरशाद फरमाया कि बस तुम कलिमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ क्योंकि जन्नत भी तो मेरी ही है, तुम्हें जन्नत में लेकर जाना मेरा काम है। लड़के ने कलिमा पढ़ा और जब उसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूल अल्लाह तो उसके जिस्म से उसकी रूह भी निकल गई। कलिमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई और लब खामोश हुए। ये पूरा मंजर देखकर उस लड़के का बाप वो यहूदी कहने लगा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लड़का अब मेरा नहीं रहा क्योंकि मैं यहूदी हूँ और आप मुसलमान हैं। मेरे लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अब आप इसको लेकर जाएं क्योंकि अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। तो काशाने नबूवत से ही अब इसका जनाजा उठे तब ही इसकी इज्जत है, ले जाएं इसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक उठाओ इसको, ए उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, ए अली जरा कंधा तो दो इसको, सब उठाओ इसको। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाज़रीन जरा सोचे कि उस आशिक की मैयत का क्या ही मुकाम होगा कि जिसको हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली जैसे अजीम लोग कंधा दिए, जबकि आगे आगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में काफी देर तक के लिए खड़े रहे। सहाबा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र के अंदर पंजों के बल चढ़ रहे थे और पूरा कदम मुबारक नहीं रख रहे थे। जब काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर तशरीफ लेकर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है, पहले तो हमें ये बताएं कि आपने कब्र के अंदर पूरा पाँव मुबारक क्यों ना रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चढ़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कब्र के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पाँव वहाँ रखता था। कब्र में पाँव रखने की जगह नहीं थी और मैं ये नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव पड़ जाए। फिर सहाबा ने दोबारा से अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों तशरीफ ले गए, हमें फरमाते तो हम चले जाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस लड़के से बोला था कि तेरी कब्र को मैं जन्नत बनाऊंगा, तो इसलिए उसकी कब्र को जन्नत बनाने के लिए उस कब्र के अंदर चला गया था। फिर से अर्ज किया गया कि फिर हुजूर आप इतने थके हुए क्यों हैं? फरमाया थका हुआ इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, इसी वजह से थक गया हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा बूढ़ा भी है कि जिससे जहन्नुम भी पनाह मांगती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बदबख्त बूढ़ा कौन है जिससे जहन्नुम भी पनाह मांगती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बूढ़ा जानी है, यानी वो शख्स जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी हो और वो बदकारी करे यानी बुढ़ापे में जिना करे, तो ऐसे बूढ़े से जहन्नुम भी पनाह मांगती है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिना को मामूली समझेंगे। क़यामत के दिन उनकी औरतें लिबास पहने हुए भी उरिया होंगी, उन पर लानत करें क्योंकि वो मलऊन है। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि रात को मुझे दो फरिश्ते लेकर गए और मैंने देखा कि कुछ मर्दों औरतें तनूर नुमा गड्ढे में उरिया हैं, ऊपर से तंग और नीचे से वसी, और उनके नीचे आग जल रही है। मैंने पूछा ये कौन है? कहा गया ये जानी मर्द और औरतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है और इसके करीब ही मत भटको। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक
نزدیک مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔